ٹاپ سٹوریز آپ نے جانی اور پروگرام کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے ان واقعات کے حوالے سے جس کی وجہ سے پورے ملک کی فضا جو ہے وہ سوگوار ہے، لوگ شدید غم و غصے کا شکار ہیں۔ پہلے کراچی میں 5 سال کی مروہ کو زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد اس کو قتل کر کے کچرے کنڈی میں پھینک دیا گیا، اور دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ لاہور گجرپولہ کے علاقے میں ایک ماں کو اس کے 2 بچوں کے سامنے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ اب وزیر اعظم عمران خان نے اس حوالے سے رپورٹ بھی طلب کر لی ہے کہ ہم نے پیکج بنایا، اس حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ جناب، اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے بابر خان موجود ہیں، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں جو کہ اس وقت جائے وقوع پر موجود ہے۔ بہت شکریہ بابر ہمیں وقت دینے کے لیے۔ آپ کے بیک گراؤنڈ میں جو منظر دیکھ سکتے ہیں یہ غالباً کرول جنگل کا علاقہ ہے، تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیے گا کس نوعیت کا علاقہ ہے یہ؟ بالکل دیکھیں جی کہ یہ کرول جنگل جو کہ یہ پورا علاقہ یہ دریا راوی کے بالکل کنارے پر ہے، اس کے دریا کے دوسری طرف جو پورا کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ جو کرول جنگل ہے، کرول گھاٹی ہے، اس کی جس سائٹ پر یہ واقعہ ہوا وہاں پر بالکل جنگل ہے، جبکہ سڑک کے دوسری جانب جو ہے وہاں پہ رہائش ہے، یہاں بھی کچھ رہائشی علاقے ہیں، لیکن یہ کرمنل علاقہ یہ نہ کہلاتا ہے۔ یہاں پر اکثر یہ ڈکیتی چوری کی وارداتیں ہوتی رہتی ہیں۔ اب یہ موٹر وے جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا، جب سے یہ واقعہ ہوا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سے لے کر آئی جی پنجاب سے لے کر نوٹس ہی لیے جا رہے ہیں، میٹنگز کی جا رہی ہیں، اور کل سی سی پی لاہور نے دعویٰ کیا تھا ہمارے ہی چینل پر کہ 48 گھنٹے میں ملزمان کو گرفتار کر لیں گے۔ اب سی سی پی لاہور کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 21 گھنٹے گزر چکے ہیں، اب 27 گھنٹے باقی رہ گئے ہیں۔ اب کب ملزمان کو گرفتار کیا جائے گا؟ ابھی تک کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آ رہی۔ بابر یہ بتائیے گا کہ جس مقام پر یہ واقعہ ہوا ہے لاہور سے کتنا دور ہے؟ یہ لاہور رنگ روڈ سے کتنا فاصلہ ہے؟ دیکھیں جی، لاہور رنگ روڈ سے جب یہ آتا ہے موٹر وے کی طرف، یہ راستہ آتا ہے تقریباً 1 کلومیٹر کا راستہ، ٹول پلازہ آتا ہے وہاں سے، ٹول پلازہ سے تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ جبکہ دوسری طرف جو گجرانوالہ سے جانے والی لاہور کی طرف سڑک ہے، وہاں ٹول پلازہ پہ پولیس کی باری نفری کا ایک ناکہ بھی موجود ہوتا ہے 24 گھنٹے۔ 3 کلومیٹر کا یہ فاصلہ ہے۔ اب جو شاید بتا رہے ہیں کہ پہلے یہ تقریباً 2 گھنٹے تک جو خاتون ہے وہ گاڑی میں بیٹھی رہی ہیں، موٹر وے پولیس کو فون کرتی رہی ہیں، وہ کہتی رہی ہیں کہ یہ ان کا علاقہ نہیں ہے۔ اس کے ہیلپ لائن پر فون کیا گیا، اس کے بعد جب راہگیر یہاں سے گزر رہا تھا اس نے 15 پہ کال کی۔ ایک ڈولفن جو یہاں پر پہلے پہنچی ہے، ڈولفن اہلکاروں نے جب دیکھا تو انہوں نے ہوائی فائرنگ کی ہے، جس کے بعد جو ڈاکو ہیں خاتون کو چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ اچھا بابر، پہلے تو یہ معلومات بھی آئی کہ جو انہوں نے جو کال کی تھی 15 پہ، وہ 2 بجے جو خاتون نے کال کی تھی وہ 2 بجے کی تھی، اور جو خاتون کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے وہ 3 بجے ہوئی ہے۔ تو یہ جو پہنچنے میں تاخیر ہے تو یہ بھی بہت بڑا اس کو مسئلہ کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ بھی ٹائم پہ پہنچ جاتے تو یہ نوبت نہیں آنی تھی۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، اگر پولیس بر وقت پہنچ جائے تو پھر ایسی نوبت بالکل نہ آئے۔ کئی مقامات پر ایسا ہوا، یہ گجرپورہ کا علاقہ کہلاتا ہے، گجرپورہ میں یہ دوسرا واقعہ ہوا ہے۔ اس سے پہلے ایک جو ڈسپینسر خاتون اپنے ڈاکٹر کے ہمراہ واپس جا رہی تھی کلینک سے، اس کے ساتھ بھی اسی طرح کا واقعہ ہوا تھا۔ اب یہ پھر ایسا واقعہ دہرایا گیا ہے۔ اب اگر پولیس بر وقت پہنچ جاتی، 1 گھنٹے کی تاخیر کے بعد پولیس یہاں پر پہنچی ہے، اگر پولیس بر وقت یہاں پہنچ جاتی تو بچایا جا سکتا تھا خاتون کو۔ بابر ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم آپ نے بڑا بر وقت کا جو آپ نے اگر پولیس بر وقت پہنچ جاتی، ڈولفن فورس پہنچی جی تقریباً 2:53 پہ ڈولفن فورس کا پہلا اہلکار یہاں پہنچا۔ اس نے آ کے یہاں پہ کیا دیکھا، کیا منظر دیکھا؟ ہمارے پاس ایکسکلوسیو فوٹیج موجود ہے، اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ کال نوٹ کروائی کہ ادھر نا کوئی موٹر وے کے اوپر ڈکیٹی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، گاڑی کے اندر کچھ نہیں ملا، کوئی فیملی نہیں تھی ادھر۔ تو ہم نے نیچے نا موٹر وے سے تھوڑا نیچے کی طرف لائٹ سے ہمیں ایک معلوم ہوا کہ ادھر ایک جوتا پڑا ہوا ہے بچے کا۔ جب وہ جوتا ہمیں نظر آیا تو ہم نے ادھر فائرنگ کی، ہم نے 6 سے 8 راؤنڈ تقریباً فائر کیے ہیں۔ آگے ہمیں ایک اور جوتا ملا بچے کا۔ میں نے ساتھیوں کو بلایا کہ ادھر کچھ لوگ جا رہے ہیں، مجھے شک ہو رہا ہے کہ نشانات جا رہے ہیں پاؤں کے۔ تو میرے ساتھی میرے ساتھ نیچے گئے ہیں، ہم نے آوازیں لگانا شروع کی کہ کیا ادھر کوئی ہے۔ ہمیں ایک آواز سنائی دی بھائی۔ آگے جا کے دیکھا کہ ایک لیڈیز اپنے بچوں کو، جو اس کے 3 بچے تھے، وہ ان کو سمیٹے ہوئے کھڑی تھی اور بہت زیادہ خوف زدہ تھی۔ موٹر وے کے اوپر لے کے آئے ہیں
उधर ला के उनको पानी शानी पिलाया है, वो थोड़ा मतलब होश में आए हैं। आपने सुना कि फोर्स के एहलकार का क्या कहना था। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ अब मौजूद हैं, मैं उनसे दोबारा जानना चाहूँगी। अच्छा, अभी आप जहाँ खड़े हैं, क्योंकि सुबह का वक्त है, लेकिन उसके बावजूद अब इस इलाके से खौफ आने लग गया है, क्योंकि जिस किस्म का वाक़या यहाँ पर पेश आया है। मुझे ज़रा दिखाइएगा ये रोड एग्जैक्टली है कैसी, यहाँ पर क्या कोई खाई है, नीचे कोई जंगल है, क्या कोई ऐसी जगह हैं जो कि हाइड आउट्स बन सकते हैं किसी भी दहशत के लोगों के लिए या फिर किसी भी ऐसे डाकुओं के लिए? देखिए जी, जिस मुकाम पर मैं खड़ा हूँ मोटरवे पे, या उस गाड़ी के पार्ट्स भी मौजूद है, शीशे जो थे जिसको तोड़कर डंडों के साथ जो खतून को बच्चों के सामने निकाला गया, वो शीशे अब मोटरवे पुलिस ने साफ़ कर दिए हैं। इसके बाद मेरा कैमरामैन दिखाया कि ये सामने बिल्कुल जंगल है, यहाँ पर कोई ऐसी ना तो सीसीटीवी कैमरे हैं ना कुछ है, यहाँ जंगल में वो लेके गए हैं। बच्चे जो हैं वो उस गाड़ी में बैठे रहे हैं, रोते रहे हैं, बिलबिलाते रहे हैं, लेकिन जो सफाक डाकू थे वो खतून को जंगल में ले गए हैं, वहाँ जाकर उसे ज़्यादती का निशाना बनाया है। डॉल्फिन फोर्स भी यहाँ पर पहुँची है। अब लाहौर पुलिस की समझ नहीं आ रही, वो कह रही है कि सीसीटीवी कैमरों से मदद ली जा रही है। जंगल में किसने कैमरे लगाए हैं, कहाँ से कैमरे आ गए? मोटरवे पे कैमरे नहीं लगे हुए, ये वाली जो मोटरवे है वो जंगल में कहाँ से कैमरे आ गए? अब वो सीसीटीवी कैमरों की मदद से, जियो फेंसिंग की मदद से, लोगों से वो अब इस केस को ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। और जो सुराग सा कुत्ते भी यहाँ पर छोड़े गए हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये केस इतनी जल्दी हल होने वाला नहीं है, सिर्फ दावों की हद तक ये महदूद होकर रह जाएगा। अपने आप को स्किन सेफ करने के लिए कोई जो मुजरम नहीं भी होगा उसको पकड़कर मुबैना तौर पर इनकाउंटर भी किया जा सकता है, जैसी कि रिवायत रही है। अभी तक जो है सर जोड़कर बैठे हुए हैं, अभी तक सब सर जोड़ के बैठे हुए हैं, लेकिन अल्लाह करे कि जल्द अज जल्द इन हैवानों तक पहुंचे और उनको ऐसी सज़ा दी जाए कि वो बाकी लिए जो है ना वो इबरत के तौर पे उनको देखा जा सके और कोई हिम्मत ना कर सके कि कोई किसी भी बेटी या माँ पे ऐसी गंदी आंख जो है वो उठा के देख सके। इसी वाले से हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोटरवे पुलिस के तर्जुमान महमूद अली खोखर साहब, उनसे गुफ्तगू करेंगे। अच्छा महमूद साहब, सबसे पहले तो ये आपसे जानना चाहेंगे कि जिस मुकाम पर ये खौफनाक वाक़या पेश आया है, ये मोटरवे की हदूद में जगह आती है? नहीं, मोटरवे की हदूद में नहीं है, हमारा जो जुरिस्डिक्शन है उसमें नहीं है। अच्छा, ये जो मतलब अगर हम इसको मैप में देखें तो मैप तो हमें इसको M11 कह के आइडेंटिफाई करता है, तो फिर अभी तक ये मोटरवे की हदूद में क्यों नहीं आई, उनकी जो रिस्ट्रिक्शन में क्यों नहीं आई? जबकि टोल प्लाजा पे लोग जब कार्ड लेते हैं तो वो भी मोटरवे का ही होता है। दो चीज़ें मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। जिस तरह मीडिया में भी सारी चीज़ें हाइप क्रिएट हुई कि मोटर पुलिस कहाँ थी, मोटर पे हादसा है, मोटर पुलिस कहाँ थी, यहीं पे अब आपके जो अभी जिन्होंने रिपोर्ट दी है, गालिबन बाबर नाम आपने बताया, बीट रिपोर्टर आपके, उन्होंने रिपोर्ट दे रहे थे, उन्होंने भी एक गलत जुमला ही इस्तेमाल किया कि मोटर पुलिस ने वहाँ से शीशे साफ कर दिए। भाई मोटर पुलिस है ही नहीं वहाँ पे, जुरिस्डिक्शन ही नहीं है मोटर पुलिस, पर आप ये लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं कि मोटर पुलिस ने शीशे वहाँ से साफ कर दिए हैं? नंबर वन, इसकी तस्दीक करवाइएगा। नंबर वन। दूसरी बात ये है कि जो वाक़या है ये हम बात कर सकते हैं जिसमें नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस डिप्लॉय है, जो उनकी जुरिस्डिक्शन है, उसके हवाले से हम बात करेंगे। दूसरा वाक़या जो आप बता रहे हैं लाहौर से जो सियालकोट है, और एक चीज़ जो रिंग रोड का है, तो ये नंबर वन हमारी जुरिस्डिक्शन में नहीं है। हम ज़रूर बात करेंगे जब हमारी डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्स होगी, जब हमें वहाँ पर भेजा जाएगा तो हम उसके हवाले से बात भी कर सकते हैं। अब जो मुतलका महकमे आपका काम है उनसे हम कंफर्म करेंगे वाक़े के बारे में वो क्या तफसीलात देते हैं। खोखर साहब ये बताइएगा कि सॉफ्ट ओपनिंग हुए 6 महीने हो चुके हैं, सॉफ्ट लॉन्च हुए, लेकिन अभी तक ये मोटरवे की जुरिस्डिक्शन में नहीं आया, तो क्या कोई ऐसा बोर्ड, कोई ऐसी निशानी यहाँ पर लगाई गई है, कोई ऐसा कोई बैनर मौजूद है जिससे कम से कम ये पता चल सके कि इमरजेंसी में कॉल कहाँ करनी है? मैं उसी तरफ आऊँगा, दोबारा 1 सेकंड बताऊंगा कि हम बात कर सकते हैं अपनी जुरिस्डिक्शन जहाँ पे डिप्लॉयमेंट ऑफ मोटर पुलिस है ना, हम उसके हवाले से सारी बातें आपसे शेयर कर सकते हैं। अब दो चीज़ें होती हैं जब भी रोड इंजीनियरिंग होती है, रोड इंजीनियरिंग के लिए अलग डिपार्टमेंट होता है, हमारा काम इन्फोर्समेंट एंड एजुकेशन है। जब रोड इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाती है, जब हमें बता दिया जाता है कि ये प्लान चीज़ मुकम्मल होगी है, अब आपने यहाँ पे डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्स करनी है, तो अब मोटर पुलिस वहाँ पे डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्स भी होती है और इन्फोर्समेंट के साथ सबसे ज़्यादा फोकस हमारे एजुकेशन पे होता है। तो दोनों चीज़ें आती है, जब हम वहाँ पे आ जाते हैं तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। अब जो तीसरी बात कि वहाँ पर कौन है, तो इस हवाले से मैं बताना चाहूँगा जो टेलीफोन कॉल रिसीव हुई है वो 2:47
सेकंड पे हुई है हमारे 130 हेल्प लाइन पर। 2:47 पे 2:47। नो 2:47 अच्छा, रात 2 बजे प्रिसाइसली 45 सेकंड। हाँ ओके हाँ जी 45 सेकंड्स हैं, नॉट मिनट। जी ओके जी ओके वो कॉल रिसीव होती है और विद इन अ मिनट, हालांकि काफी रश होता है, विद इन अ मिनट कॉल अटेंड हुई है। ओके 1 मिनट से भी कम वक्त में अटेंड होगी उनकी कॉल। ओके उन्होंने जो ज़ाहिर रात का वक्त था, उन्हें भी नहीं पता था, उन्होंने जो लोकेशन अपने हिसाब से बता रही थी, तो जो ऑपरेटर हमारा जिसने अटेंड किया था उस लोकेशन के हिसाब से उन्होंने बताया जी ये जुरिस्डिक्शन तो हमारी नहीं है। और दूसरी बात है, उन्होंने बात की है कि मेरा पेट्रोल खत्म हो गया है। जी जी वो बता रही पेट्रोल खत्म हो गया है तो मुझे हेल्प दरकार है। तो जब रात के स्पैर ऑपरेटर ने महसूस किया आप खातून हैं और इस जगह पे हैं, तो कहते हैं जो गो कि हमारी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है लेकिन आप यहीं पे रहें, होल्ड पे रहें। उन्होंने फिर सर्च किया कि लाहौर सियालकोट मोटर के अलॉन्ग जो है वो कौन सा ऐसा कॉन्टैक्ट नंबर है जहाँ पे हम किसी को ब्रीफ कर सकते हैं। मीनवाइल इसी वक्त उन्होंने कॉन्फ्रेंस कॉल उस नंबर में मिला दी और उन्होंने कहा जी ये इलाका आपका है, इसमें खातून है, गो कि हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं है, फिर भी हम आपको जो है बता रहे हैं कि इनसे आप डायरेक्ट रब्ता करें। फिर उनका ऑपरेटर ने कॉन्फ्रेंस कॉल में डायरेक्ट उनसे रब्ता कर लिया। उन्होंने फिर उनको सारी लोकेशन समझाई, मैं कहाँ पे हूँ, कैसे हूँ। अच्छा, ये एग्जैक्टली जो आपने कॉन्फ्रेंस कॉल में जिनसे बात की थी वो कौन सा महकमा था जो कि इस तमाम को लुक आफ्टर कर रहा था? इस वक्त जो वो इलाका है वो वहाँ पे जो ये इमरजेंसी तमाम जो व्हीकल्स को डील करते हैं, तमाम चीज़ें वो FW डील करता है। ठीक है, यानी कि अगर लगभग देखा भी जाए, अगर 2:45 पे इधर मोटरवे पुलिस को कॉल की थी, तो अगर कॉन्फ्रेंस कॉल में लिया होगा तो चले 1-2 मिनट ज़्यादा लग गए होंगे, तो इसका मतलब है कि 2:03-4 पे उनसे भी बात हो गई थी, उनको भी पता चल गया था। मतलब हमने तमाम उनको बावर करवा दिया, अब उनको वहाँ पे कंफर्म भी करा दिया, उनका राब्ता भी करा दिया कि उनको डायरेक्ट उन्होंने नंबर भी ले लिया, सारा काम किया, ठीक है हम आपके लोकेशन पे पहुँच जाते हैं। तो हमारा जो रोल था, नंबर 1 हेल्प लाइन का, नंबर 2 हमारी ऐसी एजेंसी जिसके बारे में होता है हम उनको इन्फॉर्म कर देते हैं। वो ये बात नहीं है कि मतलब इलाका नहीं है कोई, वो एक अलग बात है किसी के उसके बारे में, लेकिन जो हेल्प के बारे में था कंसर्न डिपार्टमेंट से हमने उनका रब्ता करा दिया कि जी अब आपका ये कंसर्न डिपार्टमेंट है, उनसे आप रब्ते में। कंसर्न डिपार्टमेंट क्या इस मौके पे 15 नहीं था? अगर FWO को अप्रोच किया गया तो उसके पीछे लॉजिक क्या थी? देखें, जब वहाँ पे सर्विसेज अवेलेबल होने की तमाम चीज़ें मौजूद हैं और वो कंसर्न डिपार्टमेंट भी मौजूद है और जिन पे उनको हमने बता भी दिया, आगे फिर उन्होंने जो कार्रवाई की है उसके बारे में आप उन महकमे से पूछ सकते हैं। सही, वहाँ पर जो सिलसिला यानी कि अब ये concerned बताइएगा department खोकर तो साहब, ये मौजूद है। बताइएगा कि इस वक्त कितने ऐसे मोटरवेज हैं जो कि मोटरवे पुलिस की जुरिस्डिक्शन में होने चाहिए लेकिन नहीं है? कोई इस हवाले से कोई फहरिस्त बनाई गई है? नहीं होने चाहिए। हमें तो सिर्फ देखें, हमें जहाँ पे कहा जाएगा कि यहाँ पे इन्फोर्समेंट आपने करनी है, ये मोटरवे कंप्लीट है, इसकी रोड इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई है, इसके तमाम जो रूल्स हैं उसके मुताबिक उन्होंने कंप्लीट कर लिया है और इसकी डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्स के लिए इतना जो ऑफिसर्स हैं वो रिक्रूट हो चुके हैं, तो हम उस जगह पे जाके डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्स हमारी हो जाती है। सही, बहुत शुक्रिया जी। महमूद अली खोकर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वो कह रहे हैं कि 2:02 पे कॉल आई थी, जब तो उसके बाद कॉन्फ्रेंस कॉल में जो मुतल्लिका इदारे हैं जो कि हेल्प कर सकते थे, जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, उनको भी कॉल करके आगाह किया गया था। लेकिन ये जो शफात पूरे मुल्क में जिस वक्त सूरत हाल पैदा हुई है, पूरे मुल्क में गम और गुस्से की जो है वो एक लहर जारी है और लोग तो कह रहे थे, लेकिन लोगों के साथ साथ अब सियासतदानों ने भी, जो सियासी रहनुमाओं ने भी अब यक ज़बान होकर एक ही बात कहना शुरू कर दी है और वो ये है कि जो रेपिस्ट है उसको सरेआम फांसी दी जाए। और इनमें से एक ऐसा ही मुतालबा फैसल वाडा की जानिब से भी किया गया। साथ उन्होंने कहा था क्योंकि वो वज़ीर आज़म इमरान खान से कल मुलाकात भी करने जा रहे हैं, उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे।